ظلم کی شام ڈھل چکی، جلد نیا سویرا ہوگا۔ گزشتہ حکومت نے احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ میرا دل قوم کے ساتھ دھڑکتا ہے، جلد قوم کے ساتھ مل کر خوشی کے دن پھر سے منائیں گے۔ جن جانثاروں نے انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرتے ہوئے پارٹی کا ساتھ دیا، ان کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف۔ دو ہزار بائیس کا آخری سورج تلخ اور شیریں یادوں کے ساتھ غروب۔ مختلف ملکوں میں نئے سال کا شاندار استقبال۔ نیوزی لینڈ کے سٹی ٹاور اور آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر برج پر شاندار آتش بازی۔ آسمان دلکش روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پاکستان میں 3 گھنٹے بعد نئے سال کا آغاز۔ 2022 میں پاکستانی قوم نے سیلاب سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا کیا۔ ہمیں مل کر وطن عزیز کو ترقی، خوشحالی اور امن و آشتی کا گہوارہ بنانا ہے۔ درپیش مسائل پر قابو پانے کے لیے بحیثیت قوم اپنی ترجیحات کا درست طور پر تعین کرنا ہے۔ وطن عزیز کی حفاظت اور تعمیر و ترقی کے لیے تمام توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کا پیغام۔ حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ اوگرا کی سفارشات مسترد۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار۔ عالمی سطح پر قیمتیں بڑھی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 دن برقرار رہیں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ عمران خان نے نفرت کی سیاست سے معاشرے اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ جب بھی مقابلہ ہوگا تو کٹ پتلیوں اور سلیکٹڈ کو شکست اور جمہوری قوتوں کی فتح ہوگی۔ یکجہتی کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ کم وسائل کے باوجود عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں پارٹی کارکنوں سے خطاب۔ فورن ایجنٹ اور توشہ خانہ چور الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ اس شخص کو افسوس ہے کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش پوری نہیں ہوئی۔ عمران خان بتائیں کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے 2 سال تک بلدیاتی الیکشن کیوں روکے۔ عمران خان کی کمٹمنٹ صرف قومی مفاد بیچنے، معیشت دیوالیہ کرنے اور عوام کو مہنگائی میں ڈبونے میں تھی۔ وزیر اطلاعات نعیم اورنگزیب۔ ملکی سالمیت کے لیے ہمیں ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کا آئین میں کوئی وجود نہیں۔ موجودہ حکومت ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان جلد بحرانوں سے نکل آئے گا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر۔ وفاق اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج۔ 30 دسمبر کا حکم معطل کرنے کی استدعا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال، سول سوسائٹی کے ارکان اور صحافیوں کی گرفتاریاں، ہر قسم کی کوریج پر سخت پابندی۔ تحریک آزادی سے وابستہ 181 کارکنوں اور 45 بے گناہ شہریوں کا ماورائے عدالت قتل۔ لیگل فورم فار کشمیر نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ بی جے پی حکومت ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا۔ مسلمانوں کو منافرت اور تشدد کا سامنا۔ بھارت میں انتہا پسند اسلامی تشخص کے خاتمے کے در پہ اتر پردیش کے علاقے تیلیا افغان کا نام تبدیل کر کے تیلیا شکرا کرنے کا فیصلہ۔ الہ آباد کا نام پریاگ راج اور فیض آباد کا نام ایودھیا رکھا جا چکا ہے۔ روس کا گیس واجبات کی وصولی کے لیے اہم فیصلہ۔ غیر دوست مغربی ملکوں کو پہلے سے خریدی گئی گیس کی ادائیگیاں ڈالر اور یورو میں کرنے کی اجازت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ملکوں کو گیس کی ترسیل بحال کر دی جائے گی۔ ترجمان کریملن۔ ملکی سلامتی کے لیے یوکرین کے خلاف جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ فوجیوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار تاریخ رقم کی۔ روسی وزیر دفاع۔
जंगी महाज पर रूस को शिकस्त हो रही है। इत्तेहादी मुल्कों के ताउन से रूसी फौज को नाकामी से दो चार करने की सलाहियत रखते हैं यूक्रेनी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। बहरे चीन में अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका का ताइवान में चीनी जंगी तैयारे पर निगरान मिशन को रोकने का इल्जाम। चीनी जंगी तैयारा अमेरिकी तैयारे के 6 मीटर तक करीब आ गया। अमेरिका खित्ते में इश्ताल अंगेजी से इज्तनाब और रेड लाइन उबूर न करे, चीन का इंतबाह। शायकीन के लिए खुशखबरी, 2 जनवरी से होने वाले पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट में शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट बेनतीजा रहा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी फुटबॉल क्लब अन-नसर से मुआहिदा। 2.5 साल के दौरान रोनाल्डो को $20 करोड़ मिलेंगे। रोनाल्डो ने गुज़श्ता माह इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से राहें जुदा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Your time starts now. पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान में 4 मौसम है। नहीं 5 मौसम। हाँ भाई, है कोई और जो ये चैलेंज पूरा कर सके? पाकिस्तान 75 सेकंड्स में। इसमें कौन सी मुश्किल बात? बाबा जी 75 सेकंड्स में तो आपकी सिर्फ खांसी रुकनी है। मैं भी 75 का हूँ और पाकिस्तान भी। स्टॉप वॉच रीसेट करो। ओके, गौर से सुन। प्यारा पाकिस्तान है, आजादी की नेमत है, नजरिए की दौलत है, ईमान है, इत्तेहाद है, तंजीम है, मुतफिक का आईन है, जमहूरी निजाम है और दुनिया में नाम है। चांद जैसी जमीन है, फूल जैसा चमन है, फलक पोस पहाड़ है, गहरा समंदर है, पल खाते दरिया है, खूबसूरत सहरा है, कीमती मादनियात है, घने जंगलात हैं, रंगारंग सकाफत है और जौहरी ताकत है, नाकाबिले तस्वीर है, जानिसार सिपाह है, जज्बा शहादत है, मशहूर सखावत है, कदीम तहजीब है, अजीम फनकार हैं, दर्द दिल रखने वाले बड़े रज़ाकार हैं। खेलों में नाम है, इल्म में मकाम है, नोबल नाम है, सनत का कमाल है, ज़रात बेमिसाल है, मोटरवेज का चाल है, मेट्रो का सफर है, रोशन हर डगर है, बड़े बड़े डैम है, नहरों का निजाम है, मजदूर है, किसान है, जफाकश दहकान है और सबसे बढ़कर ये कि हम जैसे बाशऊर करोड़ों नौजवान हैं। तू ही हमसे पहले, तू ही हमारे बाद है, तू शाद है, आबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। अज़्म अली शान, शाद रहे पाकिस्तान। तमाम अहले वतन को नया साल मुबारक। स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ 550 रुपए सालाना से पाकिस्तान भर में 1100 से ज्यादा अस्पतालों तक रसाई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। जुल्म की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। उन्होंने ये बात लंदन में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस की तकरीब के मौके पर कही। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि जिन जानिसारों ने मुश्किल वक्त में ज़्यादतियाँ सही और पार्टी का साथ दिया, उनकी कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने मसीही बरादरी को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून के कायद ने दुआ की कि 2023 नई उम्मीदें सहर लाई और पाकिस्तान तरक्की, अमन और इस्तेहकाम की मनाजिल तय करे। उनका कहना था कि मेरा दिल कौम के साथ धड़कता है, जल्द कौम के साथ मिलकर खुशी के दिन फिर से मनाएंगे। और नाज़रीन, अलविदा 2022, वक्त का पहिया रवां धवा। एक और साल गुजर गया। 2022 का आखिरी सूरज तल्ख
और शीरीं यादों के साथ गुरूब हो गया। न्यूजीलैंड समेत कई मुल्कों में 2023 का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि गुज़श्ता बरस वतन अज़ीज़ को मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना रहा। 2022 पाकिस्तान के लिए तल्ख़ व शीरीं साबित हुआ। सैलाब की तबाहकारियों ने आवाम के मसाइल और तकालीफ में इजाफ़ा किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला 2023 के साल को इंसानियत की फलाह बहबूद और अमन व खुशहाली का बाइस बनाए और हम 2023 में पाकिस्तान को माशी और सियासी इस्तेहकाम और समाजी बेहतरी की मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साल 2023 में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासिरीन की ज़िंदगियों में उजाले करने की सर तोड़ कोशिश करेंगे। दुआ है कि नया साल दहशतगर्दी महंगाई से निजात का साल हो, आवाम की जान और माशी का तहफ़्फ़ुज़ हो। उन्होंने कहा कि नए साल में दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत हमजहत चैलेंजेस का सामना है। हमें नए साल को आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तक़बिल की पायदार बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अहद करते हैं कि आवाम की ज़िंदगियों की तलख़ियाँ कम करने और हालात बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम करेंगे। नए साल को अपने नौजवानों के लिए मौक़े का साल बनाएंगे। उनका कहना था कि हमें मिलकर पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और अमन व आशती का गहवारा बनाना है। वज़ीर आज़म ने नए साल के मौके पर शहदाए वतन को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने दुआ की कि नया साल मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने साल नौ की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि 2022 में कोरोना के बाद वतन अजीज़ को तबाहकुन सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुँचाया। कौम ने साबित कदमी, इसार, हुब्बुल वतनी, यकजहती, अज़्म और इस्तक़लाल के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने और तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हमें अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। दुआ गो हैं कि नया साल पाकिस्तान, आलम इस्लाम और दुनिया के लिए बाइस रहमत हो और दुनिया को अमन व आशती और तरक्की और खुशहाली नसीब हो। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नए साल में हमें दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए बहैसियत कौम अपनी तरजीहात का दुरुस्त तौर पर तयन करना है। खुशहाल, तरक्की याफ्ता, जमहूरी और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए कौमी यकजहती, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त, मुसलसल मेहनत, जज्बे और लगन के साथ काम करना है। और साल 2022 के इख्तिताम और साल 2023 के आगाज़ पर हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की समरी को मुस्तरद करते हुए मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ब्रीफिंग में बताया कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक ये फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज़ है वो जो अपनी जो लेवी है इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्ज़ॉर्ब करे। 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 तक जो मौजूदा कीमतें हैं, डीजल की 227 रुपये 80 पैसे, पेट्रोल की 214 रुपये 80 पैसे, मिट्टी के तेल की 171 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की 169 रुपये, ये कीमतें बरकरार रहेंगी और इसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इमरान खान ने नफरत की सियासत से मुआशरे और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। जब भी मुकाबला होगा तो कठपुतलियों और सिलेक्टेड को शिकस्त, जमहूरी क़ुव्वतों की फतह होगी। कराची में पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यकजहती के साथ मुल्क को आगे बढ़ाना है। कम वसाइल के बावजूद अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान।
अपने खिताब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड कहता है कि उनके इस्तीफे असेंबली में मंजूर नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी का लियारी का रुकने असेंबली स्पीकर के पैर पकड़कर बैठा है कि इस्तीफे मंजूर न किए जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान झूठ की सियासत करके इलेक्शन से भाग रहा है। जनाबे स्पीकर, वाकई आपके लिए तो इम्तिहान है, आपके लिए तो बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। एक तरफ खान साहब कह रहा है कि मैंने सारे एमएनएस के आप इस्तीफे वसूल करें। जब वो आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, तो वही नुमाइंदे कहते हैं कि नहीं भाई मेरा इस्तीफा आप ना वसूल करें। ये जो झूठ की सियासत कर रहे हैं, कहते हैं कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, असल में वो भाग रहे हैं इलेक्शन से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक समेत तमाम सूबों की नुमाइंदा जमात है और 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। जब भी मुकाबला होगा तो जीत उम्मीद की सियासत का होगी और शिकस्त नफरत की सियासत का होगी। जो तकसीम की सियासत पे यकीन रखते हैं, जो नफरत की सियासत पे यकीन रखते हैं, वो जमातें कहते हैं कि हमारा ये शहर किसी एक जमात का है, हमारा ये शहर किसी एक ज़बान बोलने वाला का है, हमारा ये शहर किसी एक सोच रखने वाला का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कहती है कि ये शहर कराची हर किसी का है, हर ज़बान बोलने वाले का है। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया, जबकि पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा जंग लड़ी है। उस सिलेक्टेड ने इस मुल्क के शोहदा की जो लहू है उस पे सौदा करके दहशतगर्दों को वापस यहां पाकिस्तान में साबिक कबायली इलाकों में बिठा दिया। वो हमें इंपोर्टेड हुकूमत कहता है, उसने तो दहशतगर्दी को वापस इंपोर्ट कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची को ओन किया है। माजी के सिलेक्टेड ने 1100 अरब रुपए तो दूर की बात 11 रुपए भी कराची की तरक्की पर खर्च नहीं किए, जबकि हम इस शहर को रोजगार, तालीम, सकाफती और सनती तरक्की दे रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, सेनेटर वकार मेहदी, वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वाहब ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में कराची के हर जिले से हर सतह पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और इंतखाबात जीत कर बिला तफरीक कराची के अवाम की खिदमत करेंगे। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है फॉरेन एजेंट को अदम एतमाद के आईनी तरीके के जरिए इक़्तिदार से बाहर किया गया। फॉरेन एजेंट को इस बात का अफसोस है कि उसकी मुल्क को दिवालिया करने की साजिश पूरी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात ने इस्तफसार किया कि इमरान खान बताएं कि अपने दौरे इक़्तिदार में 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके। ये भी बताया जाए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन कराने से मुतालिक तहरीक इंसाफ के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान का 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने का वादा सिर्फ लूटमार, झूठ और फ्रॉड था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान का मकसद फॉरेन फंडिंग लेना, तोशाखाना की चोरी, मईशत को दिवालिया करना, मुल्क पर तारीखी कर्जे चढ़ाना और अवाम को महंगाई में डुबोना था। कश्मीर का सौदा करना और कौमी मफाद बेचना उस शख्स की कमिटमेंट थी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क की मफाद और सालमियत के लिए हमें ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का आइन में कोई वजूद नहीं। इत्तेहादी हुकूमत मईशत की बहाली के लिए कोशा है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बता रही हैं फरहाना खान। वफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। उसने मुल्क को महंगाई और कर्जों के चुंगल में जकड़ दिया। मजमूई तौर पे 4 सालों में पाकिस्तान की मुआशी सलाहियत को
तबाह किया गया। पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे उन 4 सालों के अंदर लिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी मफाद की खातिर अप्रैल 2022 में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली तो उनके मद्देनजर मुल्क बचाना था, क्योंकि इमरान खान की नाअहली की वजह से मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार था। आज अमलन सूरत हाल ये है कि तमाम वफाकी हुकूमत के वसाइल तकरीबन 100% कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को दोबारा बहाल करने के लिए अपने ऊपर एक कौमी चैलेंज आयद किया है। हम किसी सियासी मसलहत के तहत हुक्मरानी नहीं कर रहे, हम कौमी मफाद के तहत हुक्मरानी कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे नॉर्मलाइज करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी सियासत पर यकीन रखने वाले इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अवामी मफाद का कोई काम नहीं किया, बल्कि लीगी रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने में मसरूफ रहे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से ही मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। पिछली हुकूमत ने जहां 4 सालों में मईशत की बुनियादों को खोखला किया, वहीं वो दहशत गर्दी की उस जंग को जिसे हम 2018 में जीत कर गए थे, उसे भी उन्होंने नज़रअंदाज किया और 4 सालों के अंदर मुसलसल ऐसे इक़दाम उठाए कि जिनके ज़रिए से दहशत गर्दों को दोबारा सिर उठाने का मौका मिला। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो इसमें इंतहा पसंदी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 2023 पाकिस्तान की सलामती को पेश नज़र रखते हुए इसमें अमन, भाईचारा, यकजहती को फ़रोग देंगे, इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करेंगे और मुल्क में दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि इस वक्त विफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों के हमरा अवाम को रिलीफ की फराहमी, मईशत को बेहतर करने और अमन व अमान के क़याम के लिए कोशिशें कर रही है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाक बहरिया की 118वीं मिडशिपमैन और 26वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की कमिश्निंग परेड पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में हुई। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी आमद पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद न्याजी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कमिश्निंग परेड में पास आउट होने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी की तरक्की और तब्दीलियों की वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी के तकाजे बदल रहे हैं। दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पेशावराना उमूर और टेक्नोलॉजी के मुताबिक खुद को ढालने वाली बहरिया ही जदीद वॉरफेयर का मुकाबला कर सकती है। आर्मी चीफ ने पेशावराना तरबियत और तालीम की फराहमी में पाकिस्तान नेवल एकेडमी के किरदार को सराहा। उन्होंने नौजवान अफसरों को हिदायत की कि वह मुस्तकबिल का बेहतरीन लीडर बनने के लिए अपने किरदार और पेशावराना उमूर पर तवज्जो देते हुए आगे बढ़ें। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मईशत और दहशत गर्दी समेत दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स कौमी उमूर पर इत्तफाक राय पैदा करें। तकरीब में आर्मी चीफ ने कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। लेफ्टिनेंट काशिफ अब्दुल कुयूम को मजमूई बेहतरीन कारकर्दगी पर कायद आज़म गोल्ड मेडल दिया गया। मिडशिपमैन नौफल मलिक को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीद दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मलीर गैज़न का भी दौरा किया और यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने कराची कोर, रेंजर्स और मलीर गैरीजन के अफसरान से भी खिताब किया। उन्होंने मौजूदा दौर के जंगी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेशावराना उमूर और तरबियत पर तवज्जो देने की हिदायत की। आर्मी चीफ मलीर गैरीजन पहुँचे तो कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने उनका इस्तकबाल किया। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। वफाक और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर अपीलों में सिंगल बेंच के 30 दिसंबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वक्त की कमी की वजह से सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद करते हुए इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं ने हाजी मलिक शाह कोरगेश,
میر اصغر رند، میر فائق جمالی، سردار زادہ فیصل جمالی اور آغا شکیل دورانی نے ملاقات کی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ باب پارٹی کے ارکان بلوچستان اسمبلی ظہور بلدیتی، سلیم کھوسا اور عارف محمد حسنی نے بھی آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور پی پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ بلوچستان محترمہ بے نظیر شہید کے بہت قریب تھا۔ صوبے کی ترقی کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے عبید گورگیج، راؤف رند اور میر ولی محمد نے بھی ملاقات کی اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے زیر اہتمام پشاور میں ایک قبائلی جرگے کا انعقاد کیا گیا جس میں امن و امان اور دوسرے امور پر مشاورت ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر محاذ پر قبائل کی نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جرگے میں قبائلی اضلاع کے حوالے سے پیش کی جانے والی تجاویز پشاور میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کی جائے گی۔ لیگل فورم فار کشمیر نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ 2022 میں بھی انسانی حقوق کے محافظوں، سول سوسائٹی، ارکان اور صحافیوں کو گرفتاریوں اور دھمکیوں کے ذریعے خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ علاقے میں میڈیا کی ہر قسم کی کوریج پر سخت پابندی برقرار رہی اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کو آزادانہ طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2022 میں تحریک آزادی سے وابستہ 181 کارکنوں اور 45 بے گناہ شہریوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ سینئر حریت رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ کشمیری 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت کے طور پر منائیں گے تاکہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جا سکے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 جنوری کو کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں کشمیری احتجاجی مظاہروں، ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کریں گے۔ تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی ساخت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور اگر عالمی ادارہ اپنی ساخت بحال کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جموں کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر مزید کسی بھی تاخیر کے عمل درآمد کروائے۔ نظربند سینئر حریت رہنما میروائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مودی حکومت مقبوضہ علاقے میں مسلم شناخت کی علامت کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہیں علاقے کی مسلم شناخت کی نمائندہ علامت جامع مسجد سری نگر سے زبردستی دور رکھا جا رہا ہے جو مودی حکومت کی ہندتوا پالیسی کا حصہ ہے۔ ادھر فسطائی بھارتی حکومت نے ضلع اسلام آباد کے علاقے پہلگام میں ممتاز آزادی پسند رہنما عامر خان کے گھر کو مسمار کر دیا۔ اس سے پہلے ضلع پلوامہ کے علاقے راجپورہ میں بھی ایک ممتاز آزادی پسند رہنما عاشق احمد ناگرو کے گھر کو بھی مسمار کیا گیا تھا۔ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی وجہ سے بھارت سیکولر ہونے کا تشخص تیزی سے کھو رہا ہے۔ بی جے پی حکومت کی سرپرستی میں RSS کے ہندتوا نظریے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو منافرت اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انتہا پسند بھارت سے اسلامی تشخص کے خاتمے کے در پہ ہیں۔ اتر پردیش میں دیوریا کے علاقے تیلی افغان کا نام تبدیل کر کے تیلیا شکلا کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ RSS حکومت نے 2022 میں بھی مسلم ثقافت سے منسوب متعدد مقامات کے نام تبدیل کیے۔ الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج کیا گیا، فیض آباد کو ایودھیا قرار دیا گیا، مغل سرائے ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کر کے دین دیال اپادھیا اسٹیشن رکھ دیا گیا، سکندرآباد چوک کو وراگنا ادا دیوی جبکہ جھانسی ریلوے اسٹیشن کو لکشمی بائی اسٹیشن قرار دیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو 9 سال سے ریلیف کے منتظر بیوہ کو منافع کے ساتھ انشورنس کلیم کی رقم دینے کا حکم دیتے ہوئے اسٹیٹ لائف کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق اسٹیٹ لائف نے شوہر کی جانب سے دل کی بیماریاں خفیہ رکھنے کا بہانہ بنا کر بیوہ کو کلیم کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ متوفی ملک دلشاد نے 2010 میں اسٹیٹ لائف سے 2 لاکھ روپے کی لائف انشورنس پالیسی خریدی۔ 2013 میں پالیسی ہولڈرز کی وفات پر بیوہ شبنم دلشاد نے انشورنس کلیم کے لیے درخواست دی جس پر اسٹیٹ لائف نے انکار کر دیا۔ شکایت کنندہ نے وفاقی محتسب سے رابطہ کیا جس نے بیوہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسٹیٹ لائف نے وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف صدر مملکت کو اپیل دائر کر رکھی تھی۔ اور پاکستان میں 2022 کا آخری سورج تلخ اور شیریں یادوں کے ساتھ غروب ہو گیا، لیکن کل ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ پاکستان کے عوام نے پرجوش انداز میں اس سال کو الوداع کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ سال 2022 کا آخری سورج تو غروب ہو گیا ہے، لیکن عوام کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ آخری سورج صرف اس سال کا ہے۔ کل نیا سورج طلوع ہوگا، نئی صبح کا آغاز ہوگا، نئی امیدیں اور نئی امنگیں ہوں گی۔
اسلام آباد کے لیک ویو کے مقام پر یہ مناظر ہے غروب آفتاب کے، جہاں سورج اپنی کرنوں کو سمیٹ کر ڈھل رہا ہے۔ شام کی سرخی شفق پر ہر سو پھیل چکی ہے۔ اور یہاں پر عوام کا ایک جم غفیر سال کو الوداع کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ یار اپنا جو سا آخری دن ہے وہ ہم لوگ اسلام آباد کر لیں، تو ہم لوگ یہاں پہ آخری جو سا ہوا ہے سن سیٹ ہم لوگ وہ دیکھنے آئے ہیں، تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ الحمدللہ میرا جو 2022 ہے بہت زبردست گزرا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہیں۔ 2022 سے میری مطلب سکسیس کی سٹارٹ ہوئی ہے۔ ہوپ ہے کہ میرا 2023 بہت اچھا ہوگا۔ الحمدللہ 2022 بہترین رہا۔ اس سال ہم نے بہت زیادہ اچیومنٹس کی۔ بہت اچھا ہوا ہے۔ لاسٹ ایئر ہم دسمبر میں اکیلے تھے، اس دفعہ شادی شدہ ہے تو یہ بہت بڑی چینجنگ ہے۔ پاکستان کے عوام نئے سال کے لیے پرعزم اور پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر گزرتی شام کے پیچھے ایک نیا روشن سویرا طلوع ہونے کو تیار ہے۔ بہت سی امیدیں، توقعات اور کامیابیاں نئے سال میں آپ کی منتظر ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دنیا بھر میں نئے سال کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مختلف ملکوں میں نئے سال کے شاندار استقبال کے لیے تقریبات جاری ہیں۔ نیوزی لینڈ کے سٹی ٹاور اور آسٹریلیا کے سڈنی ہاربر برج پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ رنگا رنگ آتش بازی سے آسمان دلکش روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ سمیع اللہ کی رپورٹ۔ نیوزی لینڈ کے اسکائی ٹاور پہ نئے سال کی آمد پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ روس میں بھی نئے سال کا آغاز ہوا، جبکہ آسٹریلیا میں سڈنی ہاربر برج پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا۔ جاپان اور کوریا میں بھی رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ چین، فلپائن اور سنگاپور میں بھی آسمان دلکش روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ رات 10 بجے انڈونیشیا اور تھائی لینڈ، 10:30 بجے میانمار، 11 بجے بنگلہ دیش، جبکہ 11:30 بجے بھارت اور سری لنکا میں بھی نئے سال کو منایا جائے گا۔ رات 12 بجے وطن عزیز نئی امیدوں اور نئے خوابوں کے ساتھ 2023 میں قدم رکھے گا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ Your time starts now. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ پاکستان میں 4 موسم ہیں، نہیں 5 میں۔ ہاں بھائی، ہے کوئی اور جو یہ چیلنج پورا کر سکے؟ پاکستان 75 سیکنڈز میں۔ اس میں کون سی مشکل بات؟ بابا جی 75 سیکنڈز میں تو آپ کی صرف کھانسی رکنی ہے۔ میں بھی 75 کا ہوں اور پاکستان بھی۔ سٹاپ واچ ریسیٹ کرو۔ اوکے، غور سے سن۔ پیارا پاکستان ہے، آزادی کی نعمت ہے، نظریے کی دولت ہے، ایمان ہے، اتحاد ہے، تنظیم ہے، بتوک کا آئین ہے، جمہوری نظام ہے اور دنیا میں نام ہے۔ چاند جیسی زمین ہے، پھول جیسا چمن ہے، فلک بوس پہاڑ ہیں، گہرا سمندر ہے، پل کھاتے دریا ہیں، خوبصورت صحرا ہے، قیمتی معدنیات ہے، گھنے جنگلات ہیں، رنگا رنگ ثقافت ہے اور جوہری طاقت ہے، ناقابل تسخیر ہے، جانثار سپاہ ہے، جذبہ شہادت ہے، مشہور سخاوت ہے، قدیم تہذیب ہے، عظیم فنکار ہیں، درد دل رکھنے والے بڑے رضاکار ہیں، کھیلوں میں نام ہے، علم میں مقام ہے، نوبل نام ہے، صنعت کا کمال ہے، زراعت بے مثال ہے، موٹر ویز کا جال ہے، میٹرو کا سفر ہے، روشن ہر ڈگر ہے، بڑے بڑے ڈیم ہے، نہروں کا نظام ہے، مزدور ہے، کسان ہے، جفا کش دہقان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جیسے باشعور کروڑوں نوجوان ہیں۔ تو ہی ہم سے پہلے، تو ہی ہمارے بعد ہے، تو شاد ہے، آباد ہے، پاکستان زندہ باد ہے۔ عزم علی شان، شاد رہے پاکستان۔ تمام اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد نے ملاقات کی۔
मुलाकात में मेडिकल की तालीम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने बेसिक साइंस में एमफिल और PhD प्रोग्राम शुरू किया है। यूनिवर्सिटी की तौसीक़ के लिए हमें ज़मीन दरकार है ताकि दूसरे बड़े प्रोग्राम शुरू किए जा सकें। HEC हमें क्लिनिकल साइंसेज में आला तालीम के मयार को बुलंद करने के लिए मदद फ़राहम करे। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ने आला तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। और अवामी रिलीफ के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आज़म के अहकामात पर मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन आटा, चीनी, घी, चावलें और दालें रियायती नरखों पर कल से फ्राहम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सारिफीन इस खुसूसी टारगेटेड सब्सिडी से इस्तेफादा कर सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के दीगर सारिफीन को भी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडी दी जाएगी। साल 2022 में सैलाब और कुदरती आफात के नतीजे में 5000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा-ए अजल बने हैं। दुनिया के कई ममालिक में सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान और खुश्क साली ने भी तबाही मचाई। वकार हैदर की रिपोर्ट। 2015 से 2022 ये 8 साल कुराए अर्ज के गर्म तरीन सालों में शुमार किए जाते हैं। इन सालों में दुनिया के कई इलाके हीट वेव, पानी की कमी और ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हुए। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तबाही मचा दी। दिहाई के बदतरीन सैलाब से पाकिस्तान दो चार हुआ। मार्च में होने वाली मानसून बारिशों की वजह से शदीद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाद अगस्त में कौमी इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। मुल्क का तकरीबन 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब की वजह से बेघर हुए। कुदरती आफात के बाइस दुनिया के कई ममालिक में सैकड़ों अफराद जान से गए। साल 2022 में पाकिस्तान में तकरीबन 1739 अफराद सैलाब के बाइस जान से गए। अफगानिस्तान में जलजले के बाइस 1036 अफराद लुक़्मा अजल बने, जबकि 182 अफराद सैलाब की नजर हुए। नाइजीरिया में आने वाले सैलाब में 612 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। अप्रैल में जनूबी अफ्रीका में सैलाब ने 461 अफराद की जान ले ली। इंडोनेशिया में जलजले के बाइस 334 हलाकतें हुई। इसी तरह फिलिपाइन में साइक्लोन तूफान की वजह से 214 अफराद मौत के मुंह में चले गए। ब्राजील में भी सैलाब के बाइस 233 अमवात हुई। अफ्रीकी मुल्क युगांडा में खुश्क साली के बाइस 200 अफराद जाँ बहक हुए। जून से सितंबर के दौरान भारत में सैलाब से 192 अफराद हलाक हुए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। साल 2022 मजमूई तौर पर लॉलीवुड के लिए बेहतरीन साल रहा। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान से 91 करोड़ जबकि दुनिया भर से 230 करोड़ रुपए का बिजनेस करके तारीख रकम की। शोबिज़ इंडस्ट्री की साल भर की कहानी जानते हैं ताहिर जाफरी से। कबर तक पहुंचते तेनू अपनी मां दी को आवाज आएगी। साल 2022 में मजमूई तौर पर 10 मेगा फिल्म समेत 26 पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनी। साल की आखिरी सहमाही में आने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को फिल्म बीनों ने खूब सराहा। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान की अदाकारी ने धूम मचा दी। इस फिल्म ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 230 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। हुमायूं सईद की फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा को भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म ने पाकिस्तान से 30 करोड़ रुपए समेत मजमूई तौर पर 55 करोड़ रुपए कमाए। कायदे आज़म जिंदाबाद 42 करोड़, घबराना नहीं है 16 करोड़ और दम मस्तम 10 करोड़ रुपए कमा सकी। नामवर स्क्रिप्ट राइटर नासिर अदीब का मानना है कि मजबूत कहानी, जानदार अदाकारी और तफरीह का अछूता अंदाज ही बॉलीवुड की बहाली का बायस बना। 2022 में साबित कर दिया लेजेंड ऑफ मौला जट ने लग के। वो जब सुपरहिट हुई तो लोगों को पता चल गया कि पंजाबी जुबान में भी इंटरनेशनल फिल्म बनाई जा सकती। तेरे बाजरे दी राखी, पर्दे में रहने दो, कमली, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, रहबरा और लफंगे शायकीन फिल्म के दिल ना जीत सकी। ताहम शोबिस से ताल्लुक रखने वाली कादावर शख्सियात ने 2022 को फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की का साल करार दिया है। ऐसी तब्दीली आएगी कि फिर से इसकी रौनकें बहाल हो जाएंगी इस फिल्म इंडस्ट्री की, और फिर से गहमा गहमी हो जाएगी। फिर से ये अरूज जो है हमें नसीब होगा जो हम काफी अरसे से तरस रहे थे। सिनेमा घरों में टिच बटन और जरार की नुमाइश भी जारी है। तवक्को की जा रही है कि ये फिल्में भी अच्छा बिजनेस करेंगी। हुकूमत के संजीदा इक़दामात के बायस लॉलीवुड बहाली की जानिब गामजन है। उम्मीद है आने वाले दिनों में शोबिज़ एक मुनाफा बख्श सनत बनकर सामने आएगी। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अदालती फैसलों का एहतराम करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में एक दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन 101 की बजाय 125 यूनियन काउंसिल्स में होंगे, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन बराह रास्त होंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इमरान खान की मनफी सियासत बेनकाब होती जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इस्लामाबाद में मुतअद्दिद मंसूबे जारी हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि कबायली अजला की मुश्किलात का बाखूबी इल्म है। मालाकन समेत तमाम कबायली अजला की सिफारिशात पर संजीदगी से अमली पेशरफ्त की जाएगी। पेशावर में मालाकन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद हुनर सिखाने के लिए हमने अपने वसाइल बुरोकार लाने हैं। गवर्नर ने कहा कि कुदरत ने हमारे खुतबे को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन वसाइल से मुस्तफ़ीद होने के लिए नौजवानों को दरकार तरबियत फराहम की जाए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं जो तरसीलात ज़र के ज़रिए मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने ये बात लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानी चीफ कोआर्डिनेटर अमजद मलिक की क़यादत में 5 रुकनी बेंच से गुफ्तगू में कही। मुलाकात में तजारत और बरामदात बढ़ाने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत कम वसाइल के बावजूद मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि तलबा और तालिबात इस मुल्क का फ़ख्र हैं। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के 8वें कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है लेकिन बदकिस्मती से हम पीछे रह गए। उनका कहना था कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम आगे बढ़ें और अपने मुल्क को संवारें। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मुल्क की कदर करें और अपने मुल्क के लिए काम करें। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने 500 से ज़ायद MBBS और MBDS के फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियां और कामयाबी हासिल करने वाले 62 तलबा और तालिबात को मेडल्स दिए। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर लाहौर में सिविल डिफेंस की तरफ से फायर फाइटिंग के बारे में आगाही फराहम करने के लिए खुसूसी तरबियत का एहतमाम किया गया। सिविल डिफेंस की टीम ने PTV मुलाजमीन को मुख्तलिफ किस्म की आग पर काबू पाने के लिए अमली तरबियत दी। इस मौके पर आग बुझाने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में आगाही दी गई। जनरल मैनेजर PTV सेंटर लाहौर सैफुद्दीन और सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद खालिद ने सिविल डिफेंस की टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आग बुझाने वाले आलात के इस्तेमाल के बारे में तमाम अफराद को आगाही हासिल करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता है जहां हर मौसम अपने अंदर अलग कशिश और जाज़बियत समोए हुए है। यूं तो मौसम सरमा, उदासी और सोगवारी से इबारत है, लेकिन कश्मीर में सरमा के अलग ही रंग हैं। तफसील अदील अहमद खान की रिपोर्ट में देखिए। वादी कश्मीर सयाहों के साथ साथ शायरों, अदीबों और अक्कासों के लिए भी बाइसे कशिश रही है। कश्मीर में इस वक्त सर्द रुत है। पहाड़ों ने सफ़ेद पोशी अख्तियार कर रखी है। दरियाओं और नदी नालों के जल तरंग और सुरसाज मधम पड़ गए हैं। चरिंद परिंद सर्दी से घबराए हुए हैं। ज़मीन पर इस वक्त जर्द पत्तों की बहार है। पेड़ पौधों के हाथ खाली हैं। पाँव तले आकर जर्द, मुजमिल और दरीदा तन पत्तों के चटकने की आवाज़ें माहौल में अजीब सा सहर तारी करती हैं। आज़ाद कश्मीर में ख़ज़ां के मौसम का क्या ही कहना। जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो पूरा आज़ाद कश्मीर एक सुनहरी चादर ओढ़ लेता है। सर्द मौसम में कश्मीर की वादियों में सरे शाम ही आग के अलाव रोशन होने लगते हैं और कच्चे पक्के मकानों से उठता धुआं अजीब सा सहर तारी करता है। सर्द मौसम में सर्दी का मुकाबला करने वाले रवायती पकवान तैयार किए जाते हैं। मौसम सरमा यूं तो उदासी और सोगवारी से इबारत है, लेकिन कश्मीर में इस मौसम की भी एक अलग ही रानाई, चाशनी और दिल आवेजी है जिसे सिर्फ अहले कल्ब व नज़र ही समझ सकते हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का इम्कान है। खित्ता पोठवार में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही: लै -14, अस्तोर -10, कालाम गोपस -8, कालात -7, ज़ियारत -6, हुंजा, मालम जब्बा और पारा चिनार में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
عالمی منظرنامے میں سب سے پہلے رخ کریں گے روس کا، جس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت غیر دوست قرار دیے گئے مغربی ملکوں کو پہلے سے خریدی گئی گیس کی ادائیگیاں ڈالر یا یورو میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ممالک کو روسی گیس کی ترسیل بحال کر دی جائے گی۔ روس نے روبل میں ادائیگی نہ کرنے پر پولینڈ، بلغاریہ، فن لینڈ، ہالینڈ اور بعض یورپی فنڈز کو قدرتی گیس کی ترسیل کو روک دیا تھا۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوگوف نے کہا ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے یوکرین کے خلاف جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ نئے سال پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ فرنٹ لائنز پر صورتحال مشکل رہی اور تاہم ہمارے فوجیوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار تاریخ رقم کی ہے۔ ادھر یوکرین کا موقف ہے کہ جنگی محاذ پر روس کو شکست ہو رہی ہے۔ یوکرینی چیف آف جنرل اسٹاف نے کہا کہ اتحادی ملکوں کے تعاون سے ہم روسی فوج کو ناکامی سے دوچار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بحیرہ چین میں امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ تائیوان کے فضائی حدود میں ایک چینی جنگی طیارے نے اس کے نگران مشن کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ چینی جنگی طیارہ پرواز کرنے والے امریکی جاسوس سیارے سے 6 میٹر تک قریب آ گیا۔ حادثے سے بچنے کے لیے امریکی پائلٹ کو بڑی تیزی سے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حال ہی میں چین نے تائیوان کے نواح میں ایک اسٹرائک ڈرل کی تھی، جس میں 71 جنگی طیارے شامل تھے۔ سپورٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے شائقین کا داخلہ مفت کر دیا ہے۔ شائقین اسٹیڈیم کے کسی بھی انکلوجر سے کھیل کا براہ راست لطف اٹھا سکیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ 2 جنوری سے کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پہلا ٹیسٹ میچ بغیر نتیجے کے ختم ہوا۔ سیریز پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ پی ٹی وی نیوز کی ٹیم نے پی ٹی وی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں کھیلے گئے فائنل میں پی ٹی وی نیوز نے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کو 8 وکٹوں سے ہرایا۔ پی ٹی وی نیوز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز کی ٹیم 19 اوورز میں 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عمران شہزاد نے 16، وجاہت میر نے 15 رنز بنائے۔ پی ٹی وی نیوز کی طرف سے زہیب اکبر نے 3، جبکہ عمران صدوزئی اور احمد نواز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پی ٹی وی نیوز نے 87 رنز کا ہدف 17.2 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اوپنر طاہر سلیم 33 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ احمد نواز نے 21 اور ارسلان سعید نے 16 رن سکور کیے۔ فائنل میچ کے اختتام پر ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل ظفر اللہ خان نے فاتح اور رنر اپ ٹیم کو ٹرافی اور ٹورنامنٹ کے منتظمین کو شیلڈز بھی دیں۔ سال 2022 پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بہت کامیاب رہا، کیونکہ اس میں آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ جیسی ٹیموں نے پاکستان سرزمین پر قدم رکھا۔ گرین شرٹس نے ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ سال 2022 پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کامیاب سال رہا۔ آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا، جبکہ گرین شرٹس نے 2 بڑے ایونٹس کا فائنل بھی کھیلا۔ 27 جنوری سے 27 فروری تک پاکستان سپر لیگ کا میلہ لاہور اور کراچی کے میدانوں پر سجا۔ فائنل میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 42 رن سے ہرا کر پہلی مرتبہ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ مارچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کیا اور 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-0 سے اپنے نام کی۔ گرین شرٹس نے پلٹ کر وار کیا اور ون ڈے سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام رہی۔ جون میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 3 ون ڈے میچز کھیلنے کے لیے پاکستان کے دورے پر آئی۔ گرین شرٹس نے ملتان میں ہونے والی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو کلین سویپ کر دیا۔ جولائی میں پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا، جہاں 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابری پر ختم ہوئی۔
अगस्त में ग्रीन शर्ट्स ने नेदरलैंड्स का दौरा किया और 3 मैचेस की वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। अगस्त सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में सजा एशिया कप का मेला। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने भारत को दी 5 विकेटों की शिकस्त। बाद में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में श्रीलंका 23 रन से फाते रहा। सितंबर में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 17 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखा। कराची और लाहौर में होने वाली 7 मैचेस की सनसनीखेज T20 सीरीज 4-3 से इंग्लिश टीम के नाम रही। अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में 3 मुल्की सीरीज में हिस्सा लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी जीत ली। अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में सजा T20 वर्ल्ड कप का मेला। पाकिस्तानी टीम ने इवेंट में शानदार कमबैक करते हुए फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी समेटकर दूसरी मर्तबा T20 चैंपियन का ताज अपने सर पर सजाया। दिसंबर में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आई और पाकिस्तानी सरजमीन पर सीरीज क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान लैंड किया और 20 साल बाद पाकिस्तान में अब सीरीज खेलने में मसरूफ है। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नजम सेठी की ज़ेर सदारत PCB मैनेजमेंट कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ। रीजनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस डिपार्टमेंट्स को बहाल करने का ऐलान किया गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे में शामिल करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया जाएगा। मैनेजमेंट कमेटी ने PCB को 12 कमेटीज़ की तश्कील की मंजूरी दी। अगस्त 2023 तक खिलाड़ियों के ऐलान करदा तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा किया जाएगा। विमेन लीग का नाम बदल कर पाकिस्तान विमेंस लीग रख दिया गया। PCB मैनेजमेंट कमेटी ने पाकिस्तान जूनियर लीग को बंद करने पर रजामंदी जाहिर की, जबकि जूनियर सीरीज को होम एंड अवे की बुनियाद पर बहाल करने पर इत्तेफाक किया। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मर्जिंग कैटेगरीज में अंडर 19 खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए PSL फ्रेंचाइज से बात की जाएगी। PTV सेंट्रल्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन मशल कराची मरकज़ के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। फाइनल मैच टीम रेड और टीम ब्लू के दरमियान खेला गया, जिसमें टीम रेड ने कामयाबी हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए ब्लू टीम ने 8 ओवर्स में 82 रन बनाए। जवाब में रेड टीम ने 4 गेंदों कबल ही हदफ हासिल करके टूर्नामेंट अपने नाम किया। मेहमान खुसूसी जनरल मैनेजर अमजद हुसैन शाह थे। उन्होंने मुंतज़मीन की काविशों को सराहा और मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। आखिर में खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। अब कुछ बात करते हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को सऊदी क्लब अल नसर में शमूलियत इख्तियार कर ली गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से 28 साल का मुआहिदा किया है। सऊदी क्लब रोनाल्डो को हर साल $7.5 करोड़ देगा। रोनाल्डो और सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की जानिब से मुआहिदे का ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर रोनाल्डो को सऊदी क्लब अल नसर की जानिब से क्लब की जर्सी देते हुए दिखाया गया। क्लब इंतजामिया की जानिब से रोनाल्डो को बेहतरीन अंदाज में खुशामदीद भी कहा गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गुज़श्ता माह इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से राहें जुदा की थीं। ऑल पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन इंटर यूनिवर्सिटीज़ फुटबॉल चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने जीत ली है। MNS ज़री यूनिवर्सिटी में खेली गई चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 जामियात की फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 गोल से हराया। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। तीसरी पोजीशन के मैच में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने सरगोदा यूनिवर्सिटी को हराया। आखिर में मेहमान खुसूसी ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। पेरू में लड़ाई के जरिए गुस्सा निकालने का भरपूर मौका फराहम किया गया। कोज़्को शहर में साल के आखिर में पुरानी कुदूरतें ख़त्म करने और नई शुरुआत करने के लिए सालाना फाइटिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया।
शुरका को इवेंट में अपना गुस्सा उतारने का पूरा मौका दिया गया। पड़ोसियों ने भी अपनी हसरत पूरी की और एक दूसरे की खूब क्लास ली। खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की। आखिर में सब खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक, और यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। साथ रहिएगा।